تو جو دریا ہے تجھے جھیل بنا دیں گے، ہم دین محمد کی حفاظت کے لیے اپنے بچوں کو ابابیل بنا دیں گے۔ کے مادھیم سے لوگوں کو یہ باور کروا رہے تھے کہ شراب، نشہ، یہ بہت اس کے رسول کا خوف اگر ہم پیدا کر لیں تو ہمارے نوجوان اس میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہ نشہ، شراب، یہ تمام برائیوں کی جڑ۔ کو لگتا ہے کہ جو نشہ کرتا ہے صرف وہی خراب ہوتا ہے، آدمی اگر نشہ کر رہا ہے تو وہ پورا سماج کے لیے خراب ہے۔ ادارے سریہ ہزاری باغ کے تتوادھان میں آج اچاک پرکھنڈ کے جو پنچایت ہے یہاں گوربندہ میں لوگ پہنچے ہوئے ہیں، ادارے سریہ کے سارے علماء کرام یہاں پہ ہے، اور مقصد کیا ہے ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ آج جو نوجوان پیڑھی، جو یوا پیڑھی ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے بیچ میں نشہ ایک عادت بن گئی ہے، نشہ کے لوگ عادی ہوتے جا رہے ہیں، جس کے چلتے لوگوں کا گھر پریوار برباد ہوتا ہے، یہاں پریوار میں کلہ ہوتا ہے اور کئی زندگیاں برباد ہوتی ہیں۔ نشہ صرف اس انسان کو نہیں برباد کرتا جو نشہ کرتا ہے، آپ کو بتاتے چلے کہ جو نشہ کرتا ہے اس کا سارا پریوار اس کی جد میں آتا ہے اور پورا پریوار اس کا برباد ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ پریوار میں جو کلہ ہوتی ہے، پریوار کے رشتے برباد ہوتے ہیں، وہ تو ہوتا ہی ہے، اس کی اپنی زندگی برباد ہوتی ہے، اور کبھی نشہ کرتے کرتے وہ گمبھیر بیماری کا شکار ہوتا ہے، جس کو بتاتے کہ بچانا ڈاکٹروں کے بھی بس میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا پورا شریر جو ہے نشہ کی جد میں آ جاتا ہے، کڈنی خراب ہوتی ہے، لیور خراب ہوتا ہے، تو یہ تو اس کی بیماری ہے۔ لیکن نشہ جو سماج کو جو آج دیمک کی طرح کھا رہا ہے، اس کو لے کر آج ادارے سریہ ہزاری باغ کے جانب چل کر کے ہزاری باغ سے پہنچے ہوئے ہیں۔ یہاں دیکھیں صدر صاحب ہے، مفتی کامران صاحب ہیں، دانش اقبال صاحب ہیں، قاری ظفر عقیل صاحب ہیں، دیکھیے یہاں اور بھی مفتی عبد الجلیل صاحب ہیں، دیکھیے اور یہاں پہ سارے لوگ علماء کرام ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ ان کی بیچ میں صرف ایک ہی فکر ہے کہ سماج کو کیسے نشہ مکت بنایا جائے، اور سماج جو آج نشہ کا عادی ہوتا جا رہا ہے، تو یہ جو ہے سو یواؤں کو جس طرح سے جنگ لے رہا ہے اور کس طرح سے یہ بیماری پھیل رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے علماء کرام آج یہاں پہنچے ہوئے ہیں، اور ادارے سریہ کا ہم بھی اپنے چینل کی جانب سے شکریہ ادا کریں گے، ان کا آبھار ویکت کریں گے کہ آج انہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا ہے کہ سماج کو کس طرح سے نشہ مکت بنایا جائے۔ نشہ جو انسان کو برباد کر رہا ہے، اب آپ کو ہم دکھائیں گے کہ یہاں کے لوگ کتنے جاگروک ہیں۔ ابھی ایک نوجوان ہے، انہوں نے بھی بہت سارے کچھ بیان کیے، آج ادارے سریہ کے لوگ ہزاری باغ سے چل کر آئے ہیں، ایک فکر لے کر آئے ہیں کہ سماج کو نشہ سے مکت کیا جائے۔ کافی اچھا پہل ہے ادارے شریعہ کا، اور ہم شکر گزار ہیں ادارے شریعہ کی پوری ٹیم کا، جو قوم کے خاطر اپنے نوجوانوں کو نشہ مکت کرنے کے لیے اور دیگر کوئی پریشانی ہے اس کے لیے کافی محنت و مشقت کر کے یہاں تک آئے ہیں، اور ہم لوگوں کو جاگرک کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عوام پوری کوشش کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ متحد ہو کر ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر ہوتا چلا جائے۔ بس یہی کہنا ہے۔ کیا نام ہے؟ میرا نام محمد اکمل ہے۔ تو دیکھیے کہ نوجوان ہے، انہوں نے، ان کے اندر بھی یہ فکر ہے کہ سماج کو نشہ مکت بنایا جائے۔ مفتی کامران صاحب ہے جو ادارے سریہ کے صدر بھی ہیں، ان سے بھی جانیں گے خاص کر کے کہ آج یہ جو آئے ہیں اور مقصد کیا ہے اور قوم کو کیا کچھ تعلیم حاصل ہے۔ ادارے شریعہ ہزاری باغ کی پوری ٹیم آج گوربندہ آئی، اور گوربندہ کے لوگوں نے، یہاں کے صدر و سیکریٹری نے بڑا اچھا استقبال کیا۔ آپ کے چینل کے مادھیم سے یہ بات میں بتاؤں کہ ادارے شریعہ کا جو منصوبہ تحریک بیداری کے وقت میں تھا، وہ منصوبہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، وہ سارے فتنوں کے لیے ہم سب یہاں نکلے ہیں کہ اس کا سد باب ہو۔ ابھی آپ اپنے چینل کے مادھیم سے لوگوں کو یہ باور کروا رہے تھے کہ شراب، نشہ، یہ بہت عجیب مدعا بن چکا ہے قوم کا، اس سے قوم برباد ہو رہی ہے، اور نوجوان پیڑھی جو ہے ان میں عجیب کیفیت پیدا ہوتی جا رہی ہے شراب کی وجہ کر۔ اسی لیے اس کے روک تھام اور اس کے روک تھام کی منصوبہ بندی کے لیے یہاں پر ہم سب جمع ہوئے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایجنڈے ہیں جس پر ہماری ٹیم نے گفتگو کی، اور الحمدللہ اچھا رسپانس ملا۔ امید کرتے ہیں کہ انقلاب آئے گا۔ ادارے شریعہ کا جو دورہ چل رہا ہے، گاؤں گاؤں، شہر شہر، نگر نگر، ڈگر ڈگر، اس کے ذریعے انقلاب آئے گا، اور امید کرتے ہیں آپ کے چینل کے مادھیم سے کہ یہ پیغام عام ہوگا تاکہ دوسروں تک بھی یہ میسج جائے اور ایک پلیٹ فارم ان کو بھی فراہم ہو۔
नौजवानों से खासकर अपील क्या करेंगे, जो खास करके देखिए नशा जो होता है युवाओं के अंदर बहुत पीछा होता है, क्योंकि नशा जो होता है जो उसमें बहुत ही लिज्जत मिलती है लोगों का, और उसी में अपनी जिंदगी को जहाँ अपील करेंगे कि नशा से वो दूरी बनाए। देखिए, बहैसियत मुसलमान हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि कुरान हदीस को अगर सामने रखें, अल्लाह उसके रसूल का खौफ अगर हम पैदा कर लें, तो हमारे नौजवान इसमें ठीक हो जाएंगे कि हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। ये बहुत बड़ा पैगाम है। हमारे नौजवान ये समझे कि हमें अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। तो सबसे पहले तो ये पैगाम जो हमारे बुजुर्गों का पैगाम रहा, जो कुरान हदीस का पैगाम रहा, इसके अलावा अगर इसके मंसूबे की बात की जाए कि इसको ठीक कैसे किया जाए, तो मैं कहूँगा कि ये महल्ले इलाके के जिम्मेदारान लोग जमा होकर इस पर कड़ी से कड़ी एक्शन ले, तो उम्मीद है कि सदर साहब इसमें इनकलाब आएगा। तो अभी यहाँ के सदर साहब भी हैं, मौजूद है गौरबंदा के पंचायत के, और पहले सदर साहब से बात कर लेते हैं कि इनके यहाँ हम लोग पहुंचे हुए हैं। आपके यहाँ इदारे सरिया की पूरी टीम हजारीबाग से चलकर यहाँ पहुंची हुई है, क्या कहेंगे यहाँ के नौजवानों के अंदर कि लोग जागरूक हो? सबसे पहले तो अदारे शरीया जो हमारे यहाँ आए इसका मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमारे यहाँ आए, और जो हमारे अंदर में कमी थी वो कैसे इससे दूर किया जाए, नशाखोरी, उस पर कुछ रोशनी इन्होंने दी है। इंशाअल्लाह हम लोग उस पर पूरा कामिल उतरेंगे। इदारे सरिया से हजारीबाग से चलकर पहुंचे नायब काजी हैं और मुफ्ती मुहम्मद रजा काजी, इनसे भी जानेंगे। काफी फिक्रमंद रहते हैं कि नौजवानों में, कौम और मिल्लत में नशा को कैसे दूर किया जाए। देखिए, इदारे शरिया की पूरी टीम आज गौरबंदा आई हुई है, और यह इदारे शरिया की पूरी टीम जिला हजारीबाग के हर गांव, हर शहर में ये टीम जा रही है। उसकी वजह ये कि हमारे मुआशरे में बेशुमार ऐसी बीमारियां पनप रही, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा दिन ब दिन तबाह बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। इदारे शरिया की टीम का दौरा का जो एजेंडा है वो 2-4 एजेंडे में आपको बता रहा हूँ। पहला एजेंडा है कि जिला हजारीबाग के हर इलाका में तालीमी बेदारी के साथ दीनी, मजहबी, सियासी और तहरीकी इनकलाब कायम करना। दूसरा जो एजेंडा है कि मुआशरे में बढ़ती हुई इख्तिलाफ की रोकथाम के लिए मुनज़्ज़म कोशिश करना। आप आए दिन सुनते रहते हैं कि फलां की बेटी फलां के साथ आ गई, चाहे वो मुसलमान की बेटी हो या गैर मुस्लिम की बेटी हो। हम दोनों को पैगाम देना चाहते हैं कि आप अपने बाप की इज्जत को ठोकर मारकर किसी अजनबी के हाथ में अपना हाथ मत दीजिए। ये दूसरा एजेंडा हो गया। तीसरा एजेंडा जो इदारे शरिया का है, रद्द राफजियत के साथ दीन इस्लाम और ज़रूरियात दीन से कौम के हर फर्द को बावर कराना। चौथा जो एजेंडा है कि तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ और वक्फ़ी इमलाक के लिए इनकलाबी इक़दाम करना। और पांचवा जो एजेंडा है वो है कि मुआशरा से नशा जैसी घातक नासूर का खात्मा करके नौजवानों को बर्बाद होने से बचाना। तो इन एजेंडों पर इदारे शरिया की पूरी टीम हजारीबाग का हर गांव, हर शहर में दौरा कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर गांव के सदर, सेक्रेटरी और नौजवान बुजुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह इदारे शरिया की पूरी टीम का वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मुक़द्दर की बात। नशा को इस्लाम में हराम करार दिया गया, खास करके शराब को अगर कहा जाए। जब दौरे जहाला था तो लोग शराब पीते थे और शराब के लोग आदी थे, मगर जब इस्लाम आया, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए और उन्होंने जब शराब को हराम करार दिया, तो मदीने के गलियों में देखा गया कि शराब के जो है नदियां बहा दी गई, लोग शराब से दूरी पीते रहे। और आज फिर से ये आप लोग तहरीक चला रहे हैं, नबी की सुन्नतों को जिंदा कर रहे हैं, तो क्या अपील करेंगे नौजवानों से कि नशा से दूरी बनाएं? हम लोग मुसलमानों से और कौम के नौजवानों से और पूरे भारत के हर इंसान से ही गुजारिश करेंगे कि नशा एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमारे नौजवानों का फ्यूचर खराब हो रहा है, उसकी दुनिया भी बर्बाद हो रही है, उसकी आखिरत भी बर्बाद हो रही है। नशा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नशा, शराब ये तमाम बुराइयों की जड़ है। तो आज हमारे जो कौम के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है, उसकी फैमिली खराब हो रही है, उसका पूरा खानदान खराब हो रहा है, उसकी वजह ये है कि नशा। हम नौजवानों से गुजारिश करते हैं कि अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं, अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं या अपने नस्लों को बचाना चाहते हैं, तो नशा जैसी बीमारी से आप दूर हो जाइए, और नशा जैसी बीमारी को अपने मुआशरे से फौरन निकाल कर फेंक दीजिए, वरना हमारी कौम बर्बाद होगी, हमारी नस्ल बर्बाद होगी, और आने वाला दिन हमारे नौजवानों का फ्यूचर वो खराब हो जाएगा। तो ये मुफ्ती मुहिब रजा फैजी थे, नायब काजी इदारे सरिया के। गोबरबंदा के यहाँ इमाम साहब भी हैं, इनसे भी जानेंगे और क्या कुछ इनके द्वारा भी यहाँ किया जा रहा है नौजवानों को जागरूक करने के लिए।
इदारे शरिया की टीम यहाँ आई है, पहले इसके बारे में बताएं कि इदारे शरिया किस तरह काम कर रही है। माशाअल्लाह इदारे शरिया अच्छा काम कर रही है और आज हमारे यहाँ गौरबंदा धमरिया इदारे शरिया की टीम आई है रहनुमाई करने के लिए कि जो आज का माहौल है, जिस माहौल से हम गुजर रहे हैं कि हमारे नौजवानों की हालत ख़राब हो रही है नशाखोरी से। तो नशा वो चीज़ है जो अक्ल को ख़राब कर देती है, तो जिसकी बिना पर आज हम बड़ों का लिहाज नहीं कर पाते हैं, छोटों पर शफकत नहीं कर पाते हैं। नशा करने के बाद समझ में नहीं आता कि आदमी क्या करे। इसलिए हमें चाहिए और पूरे भारतवर्षियों को ये चाहिए, चाहे वो इस्लामी हो चाहे वो गैर इस्लामी हो, हर आदमी को ये चाहिए कि नशा से अपने बच्चों की हिफाजत करे और अपने तालीम पर फोकस करे और वो तालीम पर फोकस करे जो दुनिया में भी काम आ जाए और आखिरत में भी काम आ जाए। इसीलिए शायर ने कहा है कि उठो ए मोमिनो वक्त की रफ्तार बन जाओ, शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ का अलम बरदार बन जाओ। और उसी वक्त हम बन सकते हैं जब हम दीनी तालीम पर फोकस करेंगे, दीनी तालीम को हम सीख लेंगे। नाम मौलाना मोहम्मद हदीस आलम। तो अभी हमारे बीच एक नौजवान है और काफी समाज सेवा में अग्रणी भूमिका में रहते हैं, तस्लीम अंसारी साहब। वो भी इदारे शरिया की टीम के साथ चलकर हजारीबाग से यहाँ आए हैं इस सोचो फिक्र के साथ कि कैसे नौजवानों को नशा से बचाया जाए। ये कौम जो किसी इसका जिम्मा कुछ और था, मकसद कुछ और था और नौजवानों का मकसद भी कुछ और था कि दीन इस्लाम को किस तरह से फरोग दिया जाए, किस तरह से विस्तार दिया जाए। मगर नशा के आदी होकर आज नौजवान अपने मकसद को भूल गए हैं और नशा के आदी होकर खुद भी बर्बाद हो रहे हैं और खुद अपने परिवार को भी नशा के गर्भ में आकर बर्बाद कर रहे हैं। तस्लीम अंसारी साहब से हम बात कर रहे हैं, समाज सेवी हैं और कांग्रेस के एक बड़े नेता भी हैं और काफी समाज में अपनी एक भूमिका रखते हैं। नौजवानों के बीच में भी एक अलग पहचान है। इनके द्वारा भी नशा मुक्ति को लेकर लगातार अभियान चलाया जाता है और आज इदारे शरिया की टीम के साथ भी चलकर आए। इनसे भी जानेंगे मकसद क्या था आज के कार्यक्रम से। आज का जो मकसद है वो पूरे हजारीबाग जिला में जो सबसे बढ़ती सबसे ज्यादा खराब चीज है वो नशा। लोगों को लगता है कि जो नशा करता है सिर्फ वही खराब होता है, नहीं। एक आदमी अगर नशा कर रहा है तो वो पूरा समाज के लिए खराब है, पूरे गांव के लिए खराब है, पूरे बस्ती के लिए खराब है। अगर आप नशा करते हैं तो नशा करने से आपका जो समाज है उसमें बहुत सारी बुराइयां बढ़ रही है। जैसे जो नशा कर रहे हैं वो नशा करने के लिए आमद या जो पैसे आते हैं वो कहाँ से लाते हैं, उसके लिए बहुत सी जगह में ये लोग गलत काम कर रहे हैं। शहर में या गांव में चोरी का भी जो बहुत घटना बढ़ा है, इसका मुख्य कारण है नशा। नशा से अगर दूर हो जाए तो अपने घर अपने समाज सबको सुधार सकता है। मैं सभी गार्जियन सभी पेरेंट्स से अपील करता हूं कि अपने बच्चों पे खास नजर कर रखें। आज का जो अंडर एज बच्चे हैं, सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं छोटे बच्चे, अभी तो लोग एक शराब को ही जानते थे कि नशा होता है, लेकिन हजारीबाग शहर में जो नशा का मात्रा बढ़ा है वो एक जो कप सिरप जो बैन किए हैं अभी, वो कप सिरप का ये बहुत ज्यादा नशा हो रहा है। तो उसमें अपने बच्चों पर सभी माता सभी पिता अपने बच्चों पर ध्यान दें कि हमारे बच्चे घर से निकल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं और क्या रहे हैं, उनका रहना उठना बैठा कैसे लोगों के साथ में है। अगर इनकी समझदारी सबको दिया जाएगा तो नशा से हम लोग अपने समाज को बचा सकते हैं। अगर नशा से बच जाइएगा तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। तो ये देखिए तस्लीम अंसारी साहब थे, सोचो फिक्र रखते हैं कि कौम और मिल्लत के नौजवानों को उनका मकसद तक पहुंचाया जाए, उनके अंदर दीन की बेदारी लाया जाए और खास करके जो नशा की ओर जो उनका रुझान है उस नशा से उनको बचाया जाए। तो काफी फिक्रमंद रहते हैं। हमारे यहाँ के स्थानीय युवक भी है, क्या नाम है? मोहम्मद गुलजार। आप यही रहते हैं? जी हाँ। इदारे शरिया की टीम आज हजारीबाग से चलकर यहाँ पहुंची है एक सोचो फिक्र लेकर कि कौम और मिल्लत के नौजवानों को नशा से कैसे बचाएं। जी हाँ, बहुत उनका शुक्रिया है कि इन्होंने यहाँ पे आए और जो हम लोग को नशा के लिए बता रहे हैं। तो ये हम यही चाहते हैं कि जितने भी हमारे हजारीबाग के हो या चाक प्रखंड के भी हो, युवक चाहते हैं हम लोग कि नशा मुक्ति हो, कोई नशा नहीं करे और जो किसी को देखे नशा करते हैं उनको रोके। तो देखिए कि काफी फिक्रमंद है गांव के लोग भी। दानिश इकबाल साहब हैं, ये भी इदारे शरिया से जुड़े हुए हैं और अभी आज पहुंचे हुए हैं। आप इनसे भी जानेंगे कि मकसद क्या है। आप पहले तो पूरे परिचय दीजिए आवाम को कि आप यहाँ पहुंचे, परिचय दीजिए। मैं मोहम्मद इकबाल दानिश, इदारे शरिया हजारीबाग का सेक्रेटरी। हम लोग काफिला लेकर के सफ़र कर रहे हैं लोगों के सुधार के लिए।
और अभी बहुत सारे एजेंडे हैं, बहुत सारी गुफ्तगू हो रही है हर एजेंडे पे। जैसे बहुत सारी परेशानियां हैं, वो तो सारे लोग जानते हैं कि बच्चे तालीम से दूर हैं, नौजवान नशाखोरी कर रहे हैं, हमारे इमलाक के मामलात हैं। तो एक मामला हो तो उस पर बात की जाए, कई सारे मामलात हैं। यह है ना कि एक दो जख्म नहीं जिसमें है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठें। मैं आवाज़ दे रहा हूँ आपके चैनल के हवाले से कि लोग बेदार हो जाएं, अपने बच्चों को तालीम से जोड़ें, नौजवान तबका नशा से रुक जाए। और जो 5 दिसंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है, उस पीरियड के अंदर, उस मुद्दत के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर जो है अपने अपने इमलाक की ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे क्या करना है तो आप इदारे शरिया जामा मस्जिद हजारीबाग से रब्ता करें। आपने अभी यहाँ पे बैठक के दौरान एक बहुत ही उम्दा शहर का हाल जिस पर लोगों ने अपने काफी नजरें टिकाए हुए थे। आप शेर व शायर के माहिर हैं, थोड़ा शायराना अंदाज में कहें कि किस तरह से जागरूक किया जाए। देखिए, हम शायराना हर मौजू पे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी हम 4 मिसरे सिर्फ ये पढ़ेंगे कि तालीम बेदारी की एक मुहिम चली है। तो हम लोगों से ये बता देना चाहते हैं कि जो हमें तालीम से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बस ये बता देना चाहता हूँ कि इतना मगरूर ना हो अपनी रवानी पे। यहाँ तू जो दरिया है तुझे झील बना देंगे हम, और या खुदा दीन मोहम्मद की हिफाजत के लिए अपने बच्चों को अबाबील बना देंगे। तो देखिए कि हजारीबाग इदारे शरिया की टीम पूरी यहाँ पहुंची थी। मकसद सिर्फ ये था कौम व मिल्लत के नौजवानों को नशा से बचाया जाए, क्योंकि नशा एक दीमक की तरह पूरे इंसान को खा जाता है। जिस तरह से लकड़ी में अगर दीमक लग जाए तो लकड़ी का वजूद ही खत्म हो जाता है, चाहे उसमें आप कितने केमिकल लगाएं, मगर जो उसमें दाग आ जाता है, जो बर्बादी होती है, वो लौट पाना मुश्किल होता है। तो हम भी पूरे आवाम से ये कहेंगे, पूरे इंसानियत से कहेंगे, पूरे मानवता से कहेंगे कि पूरे मानवता की मिसाल कायम करें और अपने बच्चों को और अपने आसपास के लोगों को, समाज को नशा से मुक्त बनाएं। नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है इदारे शरिया के द्वारा। ये इनका एक सराहनीय पहल है कि गांव-गांव जाकर इदारे शरिया ने एक मुहिम ठाना है कि पूरे हजारीबाग में जो इनके इतराफ में आते हैं, गांव मोहल्ले या शहर के आसपास के जितने लोग हैं जो नशा की ओर जाते हैं, क्योंकि नशा आप जान रहे हैं कि नशा सिर्फ इंसान को नहीं बर्बाद करता, पूरे परिवार को बर्बाद करता है। जो नशा करता है वो तो खुद बर्बाद होता है। और आपको देखा जा रहा है अभी कि नशा के चलते घरेलू हिंसा की जो घटनाएं हैं, खास करके जो मारपीट की घटनाएं होती है, मियाँ बीवी में इख्तलाफ होता है, या परिवार में छोटे बड़े का रिश्ता खत्म होता है, कोई एक दूसरे का लिहाज नहीं करता, ये ड्यू टू सिर्फ ये वजह है कि नशा। और नशा से इंसान भी बर्बाद होता है, परिवार बर्बाद होता है, पूरा समाज बर्बाद होता है। हम भी अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे कि लोग अपने बच्चों को और खुद भी नशा से बचाएं, अपनी भी जिंदगी बचाएं, आखिरत बचाएं, इंसानियत को बचाएं।